Good morning to everyone. This is the sum we will be doing now in front of your screen. The following was the balance sheet of X Limited as on 31st March 2017. Here we have 14% preference shares of rupees 100 each fully paid 4 lakh, 8,000 equity shares of rupees 100 each and rupees 60 paid up, reserves and surplus nil, secured loans 14% debentures having a floating charge on all assets, interest outstanding on above debentures 32,200 also have a floating charge as above. So this has a charge on all assets. Then we have a loan on mortgage of land and building. So there is a loan which is taken by keeping land and building 1,50,000. Unsecured loan is nil, and then current under current liability and provisions we have current liabilities creditors 1,17,800. Then we have in the asset side we have fixed asset land building plant and machinery and patents investment value is nil. Current assets loans and advances we have current asset stock debtor cash loans and advances is nil. Miscellaneous expenses we have profit and loss account 2,40,000. So there is a loss. Profit and loss account in the asset side signifies a loss, and on 31st March 2017, the company went into liquidation. The balance sheet is also on the same date, 31st March 2017, the company went into liquidation. The dividend on 14% preference shares was in arrears for 1 year. Sundry creditors include preferential creditors amounting to rupees 30,000. So creditors, there is preferential creditors in 1,17,800, that is 30,000, which is preferential creditors, and preference shares are in arrears. Dividend of preference shares is in arrears for 1 year. The asset realized the following sum. Land say we got 80,000. Building we got 2 lakh, and there is a loan on mortgage of land and building which is 1,50,000. तो उसके लिए दो असेट को कंबाइन करके मॉर्गेज किया है. लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे तो 2,80,000 मिला है. लोन है 1,50,000 का, तो आसानी से पूरा लोन पे कर सकते हैं. Plant and machinery is 5 lakh. We got plant and machinery realized 5 lakh, patent 50,000, stock 1,60,000, debtors 2 lakh. The expenses of liquidation amounted to 2,94,034, sorry, 29,434. The expenses of liquidation amounted to 29,434. The liquidator is entitled to the commission of 2% on all asset realized except land and building, and 2% on amount among unsecured creditors other than preferential creditors. So हमें 2% किस पे देना, अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे, लेकिन इस पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करना है. ऑल पेमेंट्स वेर मेड अप टू 30th June 2017. तो जितना भी पेमेंट्स किया है, कब तक किया है, 30th June 2017. So this is given because interest outstanding दिया है 31st March 2017 तक, but after 31st March 2017, that is 30 June, April, May, June,
और 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट भी पे करेंगे, बिकॉज ऑल पेमेंट्स वेर मेड अप टू 30th June 2017. Then interest on mortgage loan shall be ignored at the time of payment. जो mortgage loan है उसके ऊपर का इंटरेस्ट का कुछ परसेंटेज कुछ नहीं दिया है, एंड क्वेश्चन में भी दे हैव टोल्ड कि इंटरेस्ट और mortgage loan shall be ignored at the time of payment. Prepare the liquidator's final statement of account. So we will prepare liquidators final statement of account. So here what we want, let us adjust the amount columns. Particulars, rupees, particulars, rupees. So यहाँ पे सबसे पहले we will write to assets. assets में जो भी असेट का पैसा रियलाइज हुआ वो लिखना है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस जो एज इट इज हमें लिखना है. कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे पास है 60,000. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी एसेट्स लिखेंगे. तो हमारे पास डेटर से, लेट अस टेक फ्रॉम द करंट एसेट, डेटर से कितना मिला, डेटर से वी गॉट 2 lakhs. फिर हमें स्टॉक से कितना मिला, स्टॉक से वी गॉट 1,60,000. एंड देन plant and patent and plant and machinery is there. So plant and machinery कितना रियलाइज हुआ, लिक्विडेटर ने कितने में सेल किया, 5 lakh. Then we have patents. Patents से मिला है how much, 50,000. We have written all the asset. Now except what is remaining, to surplus from securities. Here we will show those assets which has been mortgaged, pledged for taking a liability. So asset realized, कितना रियलाइज हुआ, लैंड का 80,000, बिल्डिंग का 2 lakh. asset has realized 2,80,000. इसमें से लेस करना है secured creditor. secured creditor, secured creditor से secured creditor से कितना मिला, देखो सॉरी secured creditor को कितना पे किया, it is how much, mortgage of land, loan on mortgage of land and building, it is 1,50,000. So 2,80,000 मिला, उसमें पे करना है 1,50,000. सो कितना सरप्लस बचेगा, सरप्लस ऑन सिक्योरिटी इज हाउ मच, माइनस करो, हाउ मच इज लेफ्ट विथ अस, माइनस करो, हाउ मच विल बी लेफ्ट विथ अस, 1,30,000 that we will use to pay other liabilities. So ये सबको ऐड करो, देखो हमारे पास कितना असेट्स है, कितना फंड्स है टू पे द लाइबिलिटीज. सो ये सबको ऐड करो, 60,000 प्लस 2 lakh प्लस 1,60,000 प्लस 5 lakh प्लस 50,000 plus 1,30,000, it is coming to 11 lakhs. See, are you all clear till here? What all assets we had? We had cash and bank balance. Other than cash and bank balance, हमें इधर ये सब amount मिला from the assets, those were sold by the liquidator.
सो हमने इधर लिखा, इसमें से लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो लोन के लिए मॉर्गेज्ड था, तो कितने का लोन था, 1,50,000 का। एंड लैंड एंड बिल्डिंग सेल करके हमें 80 प्लस 2 लाख 2,80,000 मिला, जिसमें से लोन 1,80,000 पे करने के बाद सरप्लस अवेलेबल फ्रॉम द सिक्योरिटीज 1,30,000 विच वी विल यूज टू पे द अदर लाइबिलिटी। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय liquidators remuneration, liquidators remuneration, बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन कितना है वो हमें वर्किंग नोट में समझेगा, दिस वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्किंग नोट। फिर हमारे पास क्या है, कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस है, liquidation expenses, is there any liquidation expense, yes, 29,434, 29,434. See here what I am telling you here, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है that what assets are there to pay the liabilities। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे असेट्स कैश एट बैंक लिखा, बिकॉज कैश एट बैंक तो हमारे पास है इतना पैसा। उसके अलावा बाद में लिखा वो सब असेट्स जो कि लिक्विडेटर ने रियलाइज किया फ्रॉम land 80,000, building 20,000, plant and machinery 5 lakh, patent 50,000, stock 1,60,000 and debtor 2 लाख। तो कैश एंड बैंक क्योंकि मैंने पहले लिखा तो उसके ही कैटेगरी में डेटर और स्टॉक है जो भी करंट असेट है। फिर मैंने प्लांट एंड मशीनरी, टैंजिबल असेट एंड इंटैंजिबल असेट ऐसे सीक्वेंस में जाने के हिसाब से लिखा। आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप अकॉर्डिंगली दो लिखो, बट इफ यू विल फॉलो दिस हायरार्की देन इट इज गुड, और नहीं तो भी इट इज ओके। देन हम लोग लिखते हैं टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, जिसमें हम असेट रियलाइज्ड लिखते हैं जो कि सिक्योर्ड लोन कौन से असेट पे सिक्योर्ड है, वो असेट को बेच के कितना पैसा मिला वो लिखा। उसमें से जो लाइबिलिटी है जो कि सिक्योर लोन है, सिक्योर क्रेडिटर्स है, वो लिखा। इट इज 1,50,000, तो हमारे पास 1,30,000 बचा which we will use to pay the liabilities. So I think it is clear till here. Then we write the liquidators remuneration. Liquidators remuneration में लिक्विडेटर रेमुनरेशन के लिए तो हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। तो इसको पे करने के बाद हम क्या करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे। उसके बाद हम सीक्वेंस में जाएंगे तो डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स कितना है, 14% डिबेंचर्स 2,30,000। फिर उसके बाद कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, 32,200। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट एक्रूड। ये इंटरेस्ट एक्रूड क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड इज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट टिल द फाइनल पेमेंट। हमने कब तक पे किया है सारा पेमेंट, टिल 30th जून। मतलब कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च तक, वो तो दिया 32,200। उसके बाद पर हमने तो पेमेंट किया है टिल 30 जून, मतलब हमने कितना महीने का एक्स्ट्रा पे किया है, अप्रैल मई जून, 3 महीने का एक्स्ट्रा, दैट इज इंटरेस्ट एक्रूड। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर 2,30,000, उस पे इंटरेस्ट कितना है 14%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट एक्रूड interest accrued on debentures, which is 2,30,000 is the capital, उस पे 14% का इंटरेस्ट निकालना है इंटू हाउ मेनी मंथ, मई जून सॉरी अप्रैल मई जून, दैट इज 3 months। मार्च के बाद अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने का और इंटरेस्ट पे करेंगे। सो इट इज कमिंग टू हाउ मच, 2,30,000 इंटू 14% इंटू 3/12, are we getting 8,050 rupees? Are we getting rupees 8050? So this we will write here 8050, 8050। सो इसके बाद डिबेंचर को पूरा सेटल कर दिया हम लोग ने। लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने के बाद हम डिबेंचर्स को पे करते हैं, तो डिबेंचर्स का पूरा कैपिटल दिया, फिर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था वो भी दिया। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन बोला ऑल पेमेंट्स आर मेड अप टू 30th जून, तो डिबेंचर्स 31st मार्च तक 32,200 आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद अप्रैल में जून का हमने कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट किया, तो वो भी पे कर दिया। अभी डिबेंचर के बाद हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो कि 30,000 है उसको पे करेंगे, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो बाई प्रेफरेंशियल creditors, which is how much, preferential creditors is 30,000, preferential creditors is 30,000। So after interest accrued we will pay the preferential creditors, 1 minute। तो यहाँ तक हो गया भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो हम क्या करते हैं, पहले लिक्विडेटर का रेमुनरेशन पे करना है, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस कुछ है तो वो पे करना है, फिर डेटर्स डिबेंचर्स को पे करना है, फिर उसका अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो पे करना है, फिर अगर हम लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, क्योंकि देखो ऑल द पेमेंट्स आर मेड अप टू जून, तो डिबेंचर का ये इंटरेस्ट तो सिर्फ मार्च तक का है, तो हमने और 3 महीने का भी कैलकुलेट किया। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अभी इसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स सबको पे करेंगे। लेकिन अभी तक देखो हमने लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेट नहीं किया है। सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट, let us go to the working note and we will calculate the liquidator's remuneration. We will calculate the liquidator's remuneration। तो लिक्विडेटर को कितना रेमुनरेशन मिलने वाला है, लिक्विडेटर को मिलने वाला है 2% ऑन ऑल असेट रियलाइज्ड। सो उसके लिए हम लोग कितना कमीशन देने वाले हैं, हम देने वाले 2% कमीशन ऑन ऑल असेट रियलाइज्ड। सो हियर 2% ऑन असेट रियलाइज्ड। सो वो देखते हैं असेट रियलाइज से हमें कितना मिला। सो लेट अस राइट ऑल द अमाउंट, 80,000 प्लस 2 लाख, दैट इज हमें 80,000 मिला, फिर 2 लाख मिला, बिल्डिंग से लैंड से 80,000, बिल्डिंग से 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से कितना मिला 5 लाख,
तो प्लस इधर लिखेंगे 5 लाख, फिर प्लस कितना मिला, प्लांट एंड मशीनरी के बाद पेटेंट 50,000, सो इधर लिखेंगे पेटेंट से 50,000, फिर उसके बाद स्टॉक डेटर, स्टॉक 1,60,000, डेटर 2 लाख, तो इधर लिखेंगे 1,60,000 प्लस डेटर से मिला 2 लाख, ये सबको ऐड करो और 2% कमीशन निकालो. So 2% commission on what is the amount after adding everything? So 2,80,000 plus 5,50,000 plus 3,60,000, तो ये हमें कितना मिला है 11,90,000. Is it coming same? 11,90,000. So 11,90,000 आ रहे सबको. So 11,90,000 का 2% कमीशन कितना रहेगा? It will be 23,800. It is how much? It is 23 rupees 23,800. ये मिला लिक्विडेटर को फ्रॉम सेलिंग ऑल द एसेट. इसके अलावा उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे भी 2% का मिलने वाला है. देखो, एंड 2% on amount among unsecured creditor other than preferential creditors. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 2% निकालेंगे on unsecured creditors. So unsecured creditors कितना है? Let us see in the question. Unsecured creditors कितना है? और इसमें हमें unsecured creditor debenture is not debenture has a charge on all floating asset, और debentures को तो हमने पे कर दिया. तो ये मॉर्गेज लोन भी सिक्योर था, कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं है. सिर्फ हमारे पास क्रेडिटर है जिसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करने पे कोई लिक्विडेटर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा. 117,800. सो यहाँ पे हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे मिलेगा? 117,800 में से जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है वो माइनस करने पे. सो 2% ऑन what is the amount? माइनस करो 117,800 minus 30,000, it is coming 87,800. उस पे 2% कमीशन निकालो. It is coming how much? It is coming to rupees 1,756. So रेमुनरेशन कितना रहेगा? ये टोटल रेमुनरेशन कितना रहेगा? ये दोनों को ऐड करो, वी विल गेट द टोटल लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन. सो टोटल रेमुनरेशन will be adding both of them, which is how much? 23,800 and 1,576 is giving us 25,556. is giving us 25,556. तो हमने मिल गया रेमुनरेशन 25,556. सो यहाँ पे लिखेंगे 25,556. सो ये भी हो गया. अभी हम पे करेंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पे कर सकते हैं. कितना बचा? टोटल था देखो यहाँ पे 1,17,800 में से 30,000 तो ऑलरेडी पे किया और उस पर कोई रेमुनरेशन नहीं है. तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना जिसपे हमने 2% कमीशन भी पे किया? 87,800. सो यहाँ पे लिखेंगे 87,800. अभी हमने सब लाइबिलिटीज को पे कर दिया अदर देन द इंटरनल लाइबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना बाकी है. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम पे करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे करने के बाद
अभी हम किसको पे करेंगे? बाय रिटर्न्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय रिटर्न्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पे हमें पहले तो दो चीज देना पड़ेगा, एक तो एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड 1 ईयर का एरियर है, फिर दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दो चीज देना है हमें। तो डिविडेंड कितना है जरा देखो, डिविडेंड कितना रहेगा उसके लिए वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन। 14% डिबेंड सॉरी 14% प्रेफरेंस शेयर्स है 4 लाख का। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 लाख पे 14% फॉर 1 ईयर। क्यों 1 ईयर? बिकॉज एक ही साल का डिविडेंड एरियर्स पे है, dividend is arrear for only 1 year. देखो the dividend on 14% preference shares was in arrears for 1 year. So this is coming 56,000. This is coming 56,000. फिर इसके बाद कैपिटल भी पे करना है, दैट इज 4 lakhs. इसके बाद जो भी पैसा बचेगा किसको जाएगा? बाय रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसको देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। और देखो क्या बैलेंसिंग फिगर आता है, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। सो सी व्हाट बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग। देखो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग बाय माइनसिंग एवरीथिंग। सब चीज माइनस करके 11 लाख से हमें कितना अमाउंट मिल रहा है? हाउ मच अमाउंट वी आर गेटिंग? 11 लाख से 25,556, 29,434, 2,30,000, 32,200, 8050, 30,000, 87,800, 56,000, 4 लाख। पूरा माइनस करने के बाद हमें मिलता है 2,09,60. 2,09,60 is the amount which will be paid to the equity shareholders. But equity shareholder को कितना मिलना था? 4,80,000. जितना नहीं मिला, जितना पोर्शन नहीं मिला उतना उनके लिए डेफिशिएंसी है। 4,80,000 मिलना चाहिए था, बट सिर्फ 2,09,60 मिला. So the amount which is not recoverable is what? That is the deficiency which is bear by the equity shareholders. कंपनी वाइंड अप होने पे उनको लास्ट में, बस you all know that equity shareholders have a residual claim. सर सबसे लास्ट में इनको मिला रेसिडुअल क्लेम और इनको सिर्फ 2,09,60 ही मिल पाया. तो इसका मतलब जो नहीं मिला दैट विल बी द लॉस. जितना अमाउंट नहीं मिला दैट विल बी द लॉस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इफ वी वांट टू चेक कि कितना लॉस है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें देखना पड़ेगा हाउ मच इज द अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. अमाउंट ड्यू टू इक्विटी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट कभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव, बिकॉज नाउ इट इज श्योर दैट यू विल बी हैविंग अ ऑब्जेक्ट multiple choice exam, online exam है. So amount due to equity shareholders is 4,80,000. So उस पे हमने कितना पे कर दिया? So amount paid to equity shareholders कितना है? Amount paid to equity shareholders है rupees 2,09,60. So how much is the deficiency? डेफिशिएंसी विल बी, जितना नहीं पे कर पाए, सो 4,80,000 पे करना था, 2,09,60 पे किया तो
तो कितना डेफिशिएंसी है, हाउ मच वॉज नॉट एबल टू पे, 4,80,000 minus 2,09,60, deficiency is rupees 279.40. दिस इज द डेफिशिएंसी. अभी हमें देखना है कि पर शेयर कितना डेफिशिएंसी हुआ है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा. तो इट विल बी हाउ मच, सी हियर. तो 8,000 शेयर्स के ऊपर 8,000 शेयर्स है, तो ये अमाउंट डिवाइड बाय 8,000 करेंगे. सो पर शेयर कितना डेफिशिएंसी है वो देखने के लिए हमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, लाइक वी हैड डन इन द लास्ट सम ऑल्सो. तो लॉस पर शेयर देखना है. अगर हमें देखना है लॉस पर शेयर कितना है, सो लॉस पर शेयर will be deficiency divide by number of shares. तो डेफिशिएंसी कितना है, 2,79,40 डिवाइड बाई 8,000, तो इट विल बी रुपीज 34.88. तो पर शेयर हमें कितना डेफिशिएंसी हुआ है, 34.88 का. सो इसके हिसाब से हमारा पर शेयर कितना है, देखो यहाँ पे हमारा हमने 80 रुपीज पे किया था, सॉरी कितना रुपीज पे किया था, 100 में 60 पे किया था, 100 में 60 पे किया था. तो यहाँ पे देखो, तो अभी यहाँ पे जब देखेंगे हमारा कितना पेड अप था, रुपीज पेड अप टू शेयर की, पेड अप टू शेयर होल्डर्स. सो यहाँ पे हमारा 60 रुपीज 60 पेड अप है, रुपीज 60 पेड अप. इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 8,000 शेयर है इनटू यहाँ पे हमारा 60 में कितने का लॉस हुआ, 34.88 का लॉस हुआ. इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो कितना मिला, तो कितना मिला, 60 माइनस 34.88, दैट इज हमें मिला 25.12. सो इट इज कमिंग टू हाउ मच, 8,000 into 25.12, which is equal to the amount which has been paid, that is 2,09,60. ऐसे हम लोग हमारा आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. वैसे ना इतना पोर्शन जो मैंने तुम लोग को अभी कराया ना, इतना पोर्शन क्वेश्चन में पूछा नहीं है. क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, दैट हाउ व्हाट प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो हमने प्रिपेयर किया. तो इतना ही हमसे पूछा था. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल 4,80,000 था, जिसमें उनको सिर्फ 2,09,60 मिला. तो कितना नहीं मिला वो उनका डेफिशिएंसी है, 2,79,40. फिर उसमें अगर लॉस पर शेयर निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी गेट द लॉस पर शेयर. और ये 60 पेड अप है, हम शेयर होल्डर ने 100 रुपए का शेयर में 60 रुपीज पे किया और उस पे उनको 34.88 का लॉस हो रहा है. तो रिमेनिंग अमाउंट तो उनको
उनको मिला है, तो 60 में से 34.88 माइनस करेंगे, मतलब एक शेयर पे उनको 25 रुपीज 25.12 मिला है और टोटल 8000 शेयर्स है। तो मल्टीप्लाई करें तो हमें समझ में आता है कि हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। With this, that amount is 2,960,000. With this sum is done, and we end this lecture with this. Thank you very much, everyone.